Good morning, student. Now in this video, we will study about the different parts of the brain. Before it, we have studied the different parts. Now let's see the next part, that is the midbrain, forebrain. I explained you yesterday. Okay. Now let's see the midbrain. The midbrain is located between the thalamus and hypothalamus. Okay. Hypothalamus thalamus के between होता है midbrain और इसके बीच में एक midbrain जो through the midbrain a canal passes. Okay, this canal is known as cerebral aqueduct. Okay, and the dorsal portion of the midbrain consists of many four round swelling lobes. Lobes होते हैं उसके अंदर. These lobes are known as corpora quadrigemina. Okay, and midbrain and hindbrain form the brain stem. जो आपका midbrain होता है और hindbrain दोनों मिलके क्या बनाते हैं? Brain stem बनाते हैं. Okay, now next see the hindbrain. Hindbrain comprises pons. Okay, pons, cerebellum एंड मेड्यूला तीनों को कंप्राइज करेगा हाइंड ब्रेन. पोन्स जो है कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन. Cerebellum has very convoluted surface. They provide the extra surface for many neurons. Okay, and the medulla of the brain is connected to the spinal cord. Medulla spinal cord से connect करता है और ये involuntary actions को control करेगा. Okay, इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करेगा? कंट्रोल करता है. मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सेक्रिएशन. रेस्पिरेशन पर कंट्रोल करता है. हमारा जो हार्ट का होता है कार्डियोवैस्कुलर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है और गैस्ट्रिक सेक्रिएशन में भी ये हेल्प करता है. व्हाट इज द मेडुला? ओके, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ओके, गेट नाउ लेट्स सी द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. Reflex action. You have studied in the 10th class also about the reflex action. Okay, so some actions, the unexpected, like you have experienced sudden withdrawal of body part when you come in the contact with object that are extremely hot, cold या pointed या sharp होता है, animals होता है. अगर कोई scary और poisonous animals है तो हम एकदम से क्या करते हैं? भागते हैं, withdrawal करते हैं अपना hand. Okay, so now this type of sudden actions. Okay, this type of sudden actions are known as reflex action. Okay, and the entire process of response to a peripheral nervous stimulation. Okay, P and S का जो stimulation है ना, that occurs involuntarily without मतलब concise effort or thought, and requires, you can say, the involvement of the part of the CNS या control central nervous system, and it is known as reflex action. Okay, so now the reflex pathway comprises at least one afferent neuron receptor. Receptor क्या होता है? Afferent neuron and one afferent neuron, effector और exciter होता है neuron. ठीक है, 2 neurons होंगे, that is the afferent and efferent. Afferent क्या करता है? Receptor होता है, receptor, and efferent क्या होता है? Effector या exciter होता है. Okay, द न्यूरॉन ये दोनों अप्रोप्रिएटली अरेंज होते हैं सीरीज में. एंड द जो अफेरेंट न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल, कहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा? फ्रॉम द सेंसरी नर्व. ओके, फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द impulses via dorsal nerve route into the CNS at the level of the spinal cord. Okay, and the afferent neuron comprise. Then afferent neuron carry the signal from CNS to the effector, and the stimulus and response thus form a reflex arc as shown in the knee jerk. Okay, here it is given the knee jerk. Okay, knee jerk is given, you can see here. Okay, jerk. Okay, you carefully you have to see. Look here, this is the afferent pathway and it's the efferent. Okay, so now these are the muscle spindle receptors, and then now afferent pathway. Afferent take the signals, है ना. afferent जो क्या करेगी? afferent न्यूरॉन रिसेप्टर है तो क्या करेगी? सिग्नल्स को लेगी. ओके, न्यूरॉन क्या करेगी? सिग्नल्स को लेगी कहाँ से? सेंसरी ऑर्गन से, एंड ट्रांसमिट करेगी इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व. ये क्या है? यहाँ से डोर्सल नर्व, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन. ओके, यहाँ से जाएगा और कहाँ पर लेकर जा रही है ये? कहाँ पर लेकर जाएगी? ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन जो है डोर्सल नर्व रूट से लेके कहाँ जा रही है? CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है. ओके, एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कोड. किस लेवल तक जाता है रिफ्लेक्स एक्शन? ओनली स्पाइनल कोड तक. ओके, फिर
जो इफेरेंट न्यूरॉन है वहाँ से वापस इफेरेंट, अब यहाँ से इफेरेंट पाथवे ये रहा, अब इफेरेंट न्यूरॉन वापस से क्या करेगा, सिग्नल को लेके आएगा सीएनएस से टू द इफेक्टर। कहाँ पर लेके आया वापस, इफेक्टर क्या थी, अपनी मसल्स। ओके, सेंसरी ऑर्गन्स यही था, स्किन, और यहाँ से वापस से वो रेस्पॉन्स लेके जा रही है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स एक क्या बना रही है, यहाँ से जा रहा है और एक वापस ये आ रहा है, एक आर्क बन रहा है यहाँ पर। ओके, आर्क इज फॉर्म्ड हियर। ओके, तो दिस आर्क इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन ओनली कहाँ तक होता है, ओनली स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक होता है, ये ब्रेन तक नहीं जाता है। ओके, तभी ये इस दैट्स व्हाई दे आर वेरी सडन एक्शंस, है ना, सडन एक्शंस होते हैं और हम जल्दी से अपने हैंड को क्या कर लेते हैं, वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड ईयर, आपका चैप्टर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, ये रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क है, डेफिनेशंस है दोनों की, यू कैन सी योर, और ये चैप्टर कंप्लीट है बिकॉज इतना ही पार्ट कम होगा इसमें, आगे का पार्ट जो डिलीटेड है, आई और ईयर। ओके, जो पार्ट है वो अभी पार्ट डिलीटेड हो गया है, सो यू हैव नॉट टू स्टडी दिस पार्ट। ओके, नाउ योर, तो आपका जो हाफ ईयरली कोर्स है वो भी क्या है, कंप्लीटेड है। नाउ हाफ ईयरली कोर्स इज कंप्लीटेड, so please you have to read it. If any query, then you can ask me personally on my WhatsApp number. Okay, get it?